तो स्टैंडिंग ग्राफिकल जनरेशन हमने कर ली थी, ठीक है. And why they are called standing waves, I repeat, because you have seen when we plotted the graphical variation, whatever energy is gained by one wave in the forward direction is lost by the other in the opposite direction. So net transfer of energy taking place is zero here. No transfer of energy is taking place here at all. ठीक है. चलिए, तो स्टैंडिंग वेव्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह सब इन्वॉल्व करते हैं अब. स्टैंडिंग वेव्स, बिफोर वी डू स्टैंडिंग वेव्स डेरिवेशंस, वी हैव सम कॉन्सेप्ट्स. रिफ्लेक्शन एट अ denser medium and reflection at a rarer medium. There are two different things. Let us discuss those things first. Reflection at a denser medium, reflection at a rarer medium. अब सपोज कर लो कि एक वेव है, ठीक है, आपने फ्री एंड अपने हैंड में पकड़ा हुआ है. अदर एंड इज अटैच्ड टू द फिक्स्ड एंड, एक रिजिड एंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है. सो व्हेन द वेव विल रीच एंड इट विल कम बैक इन द ऑपोजिट मैनर, इट विल गेट फ्लिप्ड. और जब ये वापस आएगी तो इसका फेज रिवर्स होगा. यू कैन वेल इमेजिन, क्योंकि जो वॉल है जिसके साथ ये कनेक्टेड है या फिर रिजिड बाउंड्री है जिसके साथ ये कनेक्टेड है, दैट विल exert equal and opposite reaction force on it. Because of that, there will be a phase reversal of 180 degree. तो 180 डिग्री फेज उसका चेंज होगा और ये बिल्कुल फ्लिप होके ऑपोजिट मैनर में वापस जाएगी, ठीक है. इट विल गेट फ्लिप्ड एंड गो बैक इन दिस मैनर, राइट. सो नोट डाउन, whenever reflection of waves takes place at a denser medium, there is a phase difference of 180 degree. किसके बीच में? इंसिडेंट वेव में और रिफ्लेक्टेड वेव में. पाई का फेज डिफरेंस होगा या 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड इट्स रिफ्लेक्टेड वेव. तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स 180 डिग्री ऑपोजिट होंगी. देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन देम. ओके, देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 degree between them. But when the reflection takes place at a rarer medium, अब suppose कर लो कि एक यहाँ पे पोल है and this rope has been connected to a ring that can move vertically about this pole. अब ये मतलब एक rarer medium के साथ connected है, अब एक rigid material के साथ connected नहीं, एक light से ring के साथ connected है जो up and down move कर सकता है इस पोल के ऊपर. Now when we send a wave towards this, what will happen? ये जो रिंग है उस एनर्जी से जो इसको मिल रही है फ्रॉम द वेव, उस एनर्जी से ये अप एंड डाउन बस मूव कर जाएगा. आप इमेजिन कर सकते हो, घर पे ट्राई भी कर सकते हो. यू कैन सेंड इट्स वीडियो ऑल्सो. ये भी आप नोट कर लो, जिसने लेना है ये भी ले सकते हो. तो जब ये रिंग जो है ये ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा, उसकी मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो जो वेव वापस आएगी वो उसी डायरेक्शन में वापस आएगी. No additional phase difference will be introduced. So phase difference between incident and reflected waves will be zero here. So no additional phase difference will be introduced here. So these 2 points must be clear to you. That when reflection takes place at a denser medium, there is a phase difference, additional phase difference of pi introduced. And when the reflection takes place at a rarer medium, no additional phase difference will be introduced. So is this thing clear to you? First of all, जिसको नहीं clear ये point पूछ लो, क्योंकि आगे हम ये use करेंगे articles में. And now next thing is we are going to use the wave function for a traveling wave that we had derived. कौन बताएगा wave function of traveling wave का formula क्या है? What is the formula for wave function of traveling wave that we had derived that day? चलिए raise hand, कौन बताएगा?
यस काव्या। मैम a sin 2 pi over lambda into vt minus x. यस, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x या vt प्लस x। ठीक है, तो एक तो ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर इज देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज, सम टर्म्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं, दैट लैंग्वेज वी विल बी यूजिंग फॉर स्टैंडिंग वेव्स। One language already we have used, already we have introduced two new terms that day, nodes and antinodes. कौन बताएगा नोड्स क्या होते हैं? स्टेशनरी वेव्स में नोड्स किन को बोलते हैं? यस रिद्धि। नोड्स Ma'am, when the points on the stationary waves have zero displacement and zero velocity but maximum strain. Yes, points of zero displacement but maximum strain are called nodes. And what are antinodes? कौन बताएगा? What are antinodes? Yes, students, what are antinodes? Who will tell me? Yes, Samriddhi, antinodes. Points having maximum displacement and maximum strain. Yes, minimum strain. Points of maximum displacement but minimum strain. They are called antinodes. These are the points on standing waves. ठीक है? तो next अब और भी कुछ terms हैं. हम use कर रहे हैं terms normal modes. Normal modes क्या है? These are different patterns. ठीक है, that a standing wave has while it is vibrating or oscillating. जैसे कि मैंने आपको रबर बैंड दिखाया था, वो एक स्ट्रिंग दिखाया था ना वेव मॉडल में, तो वो जब ऐसे डिसअपियरिंग से पैटर्न, लाइट से डिम से पैटर्न दिख रहे हैं आपको, अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं, वो नॉर्मल मोड्स है। ठीक है, तो लिख लीजिए नॉर्मल मोड्स क्या है? यू कैन से these are different patterns formed by a standing wave. Different patterns formed by a standing wave are called normal modes. ठीक है, और अब उसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू, मतलब ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन and this is the mode in which that instrument has produced sound of lowest frequency. ठीक है, उसको आप मतलब इस मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टोन है, फंडामेंटल टोन, उसको आप नोट बोलोगे, को आप नोट बोलोगे। दैट मीन्स दिस इज साउंड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट अ डिवाइस कैन प्रोड्यूस। जैसे सपोज कर लो आपके पास फ्लूट है, तो फ्लूट जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर सकती है, उसको हम फंडामेंटल टोन बोलेंगे, उसका फर्स्ट मोड बोलेंगे। ठीक है, उसको नोट बोलेंगे। तो लिख लीजिए फंडामेंटल मोड मींस दिस इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन इन विच द डिवाइस प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन विच द डिवाइस प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बाकी के जितने भी मोड्स हैं उनको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। फंडामेंटल मोड को छोड़ के बाकी के जितने भी रिमेनिंग पैटर्न्स हैं, मोड्स हैं वाइब्रेशन के, उनको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। लाइक वी विल से फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। पहले को हम फंडामेंटल टोन बोलेंगे, बाकी को फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, लाइक दैट। So what are overtones? Sounds of other frequencies. Sounds of other frequencies produced by an instrument. कौन से इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं? जैसे फ्लूट का एग्जांपल दिया, सितार है, गिटार है, वायलिन है, all these instruments we are talking about. ठीक है, then we have a term harmonics. हार्मोनिक्स वो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हैं, ठीक है,
जिनमें फ्रीक्वेंसी इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स आर दोज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जिनकी फ्रीक्वेंसी n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, उसको अगर हम न्यू वन बोलते हैं, तो किसी भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी उसके कोई इंटीजर टाइम्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, तो ये ट्वाइस होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। अगर हम थर्ड हार्मोनिक बोल रहे हैं तो थ्राइस होगा, एंड सो ऑन, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हार्मोनिक्स भी वो मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ही हैं, नॉर्मल मोड्स ही हैं, बट वो मोड जिसमें फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दीज टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज, दिस लैंग्वेज वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, क्लियर है? एक हैव अ लुक। जैसे आपके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यू हैव अ हारमोनियम, तो हारमोनियम जो सबसे इधर वाला सुर होता है ना, सा, पहले वाला सुर, आप उसको फंडामेंटल टोन बोलोगे। बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज की साउंड है उससे हाईएस्ट जो भी है वो ओवरटोन्स है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, वो भी नोट कर लो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स and longitudinal standing waves. Transverse standing waves and longitudinal standing waves. तो ये different types are depending upon the nature of progressive waves that are superimposing. अगर वो transverse थी तो आपकी resulting standing waves भी transverse होंगी, अगर वो longitudinal थी तो आपकी resulting standing waves भी longitudinal होंगी। ठीक है, तो लिख लीजिए डेफिनेशन, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स। हु विल टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ सिंपल स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडिंग वेव्स? यस, कौन बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडिंग वेव्स? ऑल द आंसर्स रिद्धि विल गिव। अदिति आप बोलो, अदिति, अदिति कैन यू गिव द आंसर? अनमोल आप बोलो। हाँ अदिति सुनाओ, व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स? अदिति आप अभी अनम्यूट हुए थे ना, बोलो। यस समृद्धि। They are formed due to superposition of 2 identical progressive waves in opposite direction. हाँ, तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं? These are the waves that are produced due to superposition of 2 progressive waves traveling in the opposite direction. ठीक है, वही होती है ना। तो अगर वो प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रांसवर्स हो इन नेचर, तो ये जो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी ट्रांसवर्स, बस कहने का मतलब ये। और अगर वो जो प्रोग्रेसिव वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, these are of longitudinal nature, then the resulting standing wave will also be longitudinal in nature. This is simple meaning. All right, चलिए लिखिए ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड due to superposition of, these are produced due to superposition of two identical transverse progressive waves. Two identical transverse word बस हमने यहाँ पे ऐड कर देना, two identical transverse progressive waves traveling in the opposite directions due to superposition of 2 identical transverse progressive waves traveling in the opposite directions. Example of transverse standing waves, for example सोनोमीटर वायर। ठीक है, जो हमने सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो स्टैंडिंग वेव्स थी वो ट्रांसवर्स थी। ठीक है,
Another example is the waves produced in stringed instruments. Stringed instruments कौन से हैं? सितार, गिटार, वायलिन, जिसमें स्ट्रिंग लगे हुए हैं, तो उनमें जो भी वेव्स प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स हैं. तो लिख लीजिए एग्जांपल्स. So transverse standing waves are produced in sonometer wire and stringed instruments like sitar, guitar, violin, etc. Okay, like sitar, guitar, violin, etc. अब लिखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स. बस एक ही वर्ड चेंज करना है आपने, लॉन्गिट्यूडनल. Longitudinal standing waves are produced due to superposition of two identical longitudinal progressive waves. Due to superposition of two identical longitudinal standing waves. Due to superposition of two identical longitudinal progressive waves traveling in the opposite directions. Due to superposition of two identical longitudinal progressive waves traveling in the opposite direction. Traveling in the opposite direction. एग्जाम्पल. अब लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? जहां पे एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, बिकॉज यू नो व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस थ्रू एयर, तब लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो ये ज्यादातर एयर लिक्विड गैसेस में प्रोड्यूस होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यू नो दैट. ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसके फ्लूट. फ्लूट इज देयर, देन ऑर्गन पाइप्स आर देयर, रेजोनेंस ट्यूब इज देयर, ये सब हैं. ठीक है, वो अभी हम डिटेल में करेंगे. यू विल कम टू नो कि ऑर्गन पाइप्स क्या होती हैं. व्हाट आर ऑर्गन पाइप्स? फ्लूट तो आपने देखी हुई है, उसमें हम डिफरेंट होल्स पे जब फिंगर रखते हैं तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज होती है एंड साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दैट, राइट. तो बाकी ऑर्गन पाइप्स हैं, रेजोनेंस ट्यूब है, और बकेट बीइंग फिल्ड विद वाटर, वो भी आप एग्जांपल ले सकते हो. एक बकेट है, ठीक है, एम्प्टी है, आप वाटर फिल करना स्टार्ट करते हो तो पहले कुछ और फ्रीक्वेंसी की साउंड आती है, पहले लाउड सी साउंड आती है. एज वाटर स्टार्ट्स फिलिंग अप इन द बकेट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड गोज ऑन चेंजिंग. ठीक है ना, उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स है वहां पे, because the length of air column is changing as the water is being filled in the bucket. So this bucket being filled with water is an example of closed organ pipe. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स. So first derivation is transverse standing waves in a string, propagating in a string. स्ट्रिंग मतलब रोप या वायर, ठीक है, जैसे सितार गिटार की वायर. तो सपोज कर लो कि ये जो वायर है ये दो एंड्स में फिक्स्ड होती है, ऐसे ही होता है, फिक्स्ड होती है हमेशा. आपने जितने इंस्ट्रूमेंट देखे हैं ये वायर दोनों एंड से फिक्स्ड होती है. ठीक है, सो हम उस वायर को, ये वायर है आपकी, सेंटर से प्लग करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, छोड़ देते हैं. इमेजिन अ रबर बैंड. तो ये इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा. इंसिडेंट वेव इधर जाएगी, रिफ्लेक्ट होके उसकी रिफ्लेक्टेड वेव भी बिल्कुल आइडेंटिकल होगी. दिस इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव दे विल सुपर इम्पोज एंड ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड. ऐसे ही होगा जब हम उसको ऑसिलेट करवाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे. इंसिडेंट वेव पहले जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और ये वापस आएगी. ये रिफ्लेक्टेड वेव बिल्कुल आइडेंटिकल है टू द इंसिडेंट वेव और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रही है. तो अब ये स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करेंगे. अब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनेंगे. ये हम सिंपलेस्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं. ठीक है, सपोज लेंथ ऑफ द ऑर्गन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L. ये x इक्वल टू 0 एंड हो गया,
देन इट मस्ट बी x इक्वल टू एल एंड इस एंड की पोजीशन x इक्वल टू एल ही होगी फिर, ठीक है। सो लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। So for incident wave, how can we write the wave function? अभी जो फॉर्मूला आपने सुनाया था a sin 2 पाई बाय लेमडा, और ये क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो vt माइनस x आएगा। So this is the equation for incident wave. We write y1 is equal to a sin 2 pi by lambda vt minus x. Now let us write equation for the reflected wave. रिफ्लेक्टेड वेव y2, एम्पलीट्यूड तो सेम है क्योंकि आइडेंटिकल वेव्स हैं, लैम्डा भी सेम है, vt, और क्योंकि ये डायरेक्शन इसकी रिवर्स है तो vt प्लस x आ जाएगा इन प्लेस ऑफ vt माइनस x। और एक चीज और क्या मिस कर रहे हैं हम, और क्या होगा, you must have noticed that reflection is taking place at a denser medium, so additional phase difference of pi will also be introduced here. यहाँ पे रीजन लिखिए कि why we have added pi here, because reflection is taking place at a denser medium, so that's why additional phase difference of 180 degree is introduced here. Now what is sin 180 plus theta minus sin theta, तो ये माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया माइनस ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी प्लस एक्स। रीजन दे दो यहाँ पे, बिकॉज साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, एंड दे विल नाउ सुपर इम्पोज according to principle of superposition, according to principle of superposition, resultant displacement is the sum of individual displacements. So y is equal to y1 plus y2. Put the values here. a कॉमन ले लेते हैं, sin 2 pi by lambda vt minus x minus sin 2 pi by lambda vt plus x। a कॉमन ले लिया, देखो ये स्टेप क्लियर है। y इक्वल टू y1 प्लस y2, right? Is that clear? अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा CD फॉर्मूला हमारा। डू यू नो, ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, साइन C माइनस साइन D क्या होता है, पता है किसी को ये फॉर्मूला, CD फॉर्मूला? नो, नॉट एट ऑल। हाँ जी, साइन C माइनस साइन D, कौन बताएगा फॉर्मूला? यस, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। बीच में माइनस है ना, तो 2 cos नहीं हो जाएगा, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, ऐसे नहीं होता? Anyone else confirm the formula? Yes, Shreya. मैम 2 sin c minus d by 2 and cos c plus d by 2। और sin c plus sin d क्या होता है? उसमें साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। I don't think so. Anyone else confirm the formula? Yes, boys can also confirm. अमृतपाल आप बताओ, sin c minus sin d। अमृतपाल, हाँ जी, काव्या बताओ।
Yes, ma'am. Ma'am, 2 cos C plus D divided by 2 sin C minus D by 2. तो यही बोल रही थी ना मैं, पहले कॉज आता है इसमें, तो नोट करिए साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर विच इज 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. ठीक है, तो वी विल बी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला later.